हम्म? नहीं रहने दो. एग्जिट करो. हेलो. आगे सब लोग. जी माँ. कौन कौन आया है? अनुराग, अदिति, विनय, आशु, अथर्व, मुस्कान. ठीक है. ओके. मैक्सिमम लोग तो मुझे जानते ही हैं अच्छे से. जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, आई एम मिसेस दीपाली देशपांडे. कंप्लीटेड माई एंटायर एजुकेशन इन उल्लासनगर. मैरिड इन गोवा. Since last 25 years I am in the teaching career, teaching field, and currently I am training NEET and JEE students for their test. I take classes. We have a coaching classes, SAIDIP coaching classes. We teach till 12th standard, arts, science, commerce, everything, all subjects. So I'm in the teaching field since last 25 to 30 years. और जैसे हम कहते हैं कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तब धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस होती जाती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती जाती है. तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होते होते हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं. हमने डिकोडिंग डिविनिटी एक यूट्यूब चैनल भी है हमारा. आप सब तो हो सब्सक्राइबर्स, है ना? निशांत, अथर्व, अदिति, मुस्कान. सो डिकोडिंग डिविनिटी जो हमारा चैनल है, बेसिकली हम उसमें डिविनिटी मतलब स्पिरिचुअलिटी को डिकोड करते हैं. हमारे जो भी फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसका मीनिंग क्या है, साइंटिफिक, लॉजिकल, ये सारे मीनिंग्स हम डिकोड करते हैं. फिर हमारे कुछ कस्टम्स, कुछ ट्रेडिशंस, अलॉन्ग विद दैट सम स्पिरिचुअल knowledge is given in the channel, YouTube channel, that is Decoding Divinity. So today we have organized a workshop on stress. Okay, so this was about me. I would like to ask your introduction. कौन कौन ज्वाइन हुआ है? कौन देगा पहले? दरकन स्टार्ट. Hello. Good evening all. Good evening Guruma. So my name is Darkan Valecha and I'm born and brought up in Ulasnagar. And currently I'm working with Namura. And from last 1 year I have been joined with Decoding Divinity. So it's a very grateful and pleasure journey for me with Decoding Divinity. All thanks to Guruma. बेसिकली मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ. मॉर्निंग 5 AM हमारा ऑनलाइन होता है सेशन. इवनिंग 7 o'clock भी हमारा मेडिटेशन सेशन होता है. सो जो मेडिटेशन सीखते हैं, दे कॉल मी गुरु माँ, समबडी कॉल मी दीपाली दीदी और दीपाली मैम. सो यू आर फ्री टू कॉल मी एनीथिंग. ऐसे कुछ बंधन नहीं है आप लोगों को. ओके, नेक्स्ट दिया. हेलो. हाँ हेलो, गुड इवनिंग गुरुमा. आवाज़ आ रही है? हाँ बेटा, क्लियर है. Hello everyone, I am Diya Chathani, a college student who loves learning and exploring new ideas and growing every day, and I keep on learning from Guruma, so I'm very thankful. Thank you so much. अनुज है ना? अनुज है, अनुराग है, दोनों भी है. हाँ है, अनुज है गुरु. हाँ बोल. Jai Guruma. I am Anuj Kumar. I joined at 2024. So I am feeling very nice to being in Decoding Divinity and very thanks to Guruma to explain all our culture, and I am studying in 5th standard. Thank you. ही इज द यंगेस्ट. डिकोडिंग डिविनिटी का यंगेस्ट मेंबर है ये. अनुराग. Jai Guruma. Good evening, everyone. So myself Anurag Dalko, and I'm currently in studying Bachelor's in Engineering BE in Electronics and Communication, and a final year student.
So it's been 1 year since I've joined Decoding Divinity, and it has been a very fruitful journey and fruitful experience with Decoding Divinity. All thanks to Guruma, who shares all her knowledge, all her spiritual advices to all of us, wherein we progress every day by doing meditation. Thank you, Guruma. भाविका, Good evening, Guruma. गुड इवनिंग. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भाविका मंगानी और मैं उल्लासनगर में रहती हूँ. CHM कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मुझे सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, बट बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करके. मन को बहुत शांति मिलती है. ऑल थैंक्स टू गुरुमा. मिस यू. अदिति. Good evening, everyone. आवाज आ रही है मेरी? हाँ, क्लियर. I'm studying in standard 10th currently, and I believe it has been about 2.5 years since I joined Decoding Divinity, and I just want to say it has been such a great experience. इतनी सारी अनुभूतियाँ आई है. I'm very thankful to you. Thank you, Guruma. मुस्कान. प्रणाम मैम या. एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन. मेरा नाम मुस्कान है. मैं उल्लासनगर से हूँ. डिकोडिंग डिविनिटी ज्वाइन किए मुझे लगभग 2 साल हुआ है एंड मैंने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं मेरी लाइफ में और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं. थैंक यू सो मच गुरुमा. आप नहीं होते तो फिर बस बहुत अच्छा लगता है मुझे आपको. हाँ, मेडिटेशन करना अच्छा लगना चाहिए बस. नेक्स्ट विनय. I am Vinay. I am from Ulhasnagar and I am a finalist student in Mansubani College. And I am here for the stress session. Who else is there? अथर्व. अथर्व है. आयुष है. अथर्व हो तुम? आयुष. Okay. No need for introduction. They are famous in our group. Okay. So हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, करेक्ट? नाउ स्ट्रेस या टेंशन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक साथ यूज़ करते हैं. हमारे लिए स्ट्रेस और टेंशन एक ही चीज़ होती है. तो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस या हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, आज अगर हम इस टॉपिक पे इस टॉपिक को डिकोड करने जाएं तो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेस हम उसको जानेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, सो अगर कॉमन लैंग्वेज में हम स्ट्रेस को डिकोड करना चाहें तो व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस मतलब हमारी जो लाइफ है, एवरी डे इट डिमांड्स चेंजेस. हम जो 10 साल पहले थे आज वैसे ही हैं क्या? हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारी मैच्योरिटी लेवल, हर चीज़ बदलते जा रही है. सो एवरी डे वी आर चेंजिंग. एवरी डे वी आर सपोज टू चेंज. एवरी डे हमें कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है. जब ये चेंजेस के लिए हम रेडी नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं बदलना, चेंजिंग टाइम्स के साथ जब हम बदलना नहीं चाहते, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है तो अलग अलग इमोशंस के थ्रू रिएक्ट करती है, और ये चीज को हम कहते हैं स्ट्रेस. स्ट्रेस का सिंपल मीनिंग, व्हेन चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम चेंज करें अपने आप को, और जब हम चेंज नहीं होना चाहते तो उसका रिएक्शन हमारे बॉडी और माइंड पे होता है.
तो सबसे पहले हम कुछ सिचुएशंस, आज जैसे हमने पहले ही बताया था कि आज के सेशन में हम स्ट्रेस को जानेंगे, तो आज हम क्या डिकोड करेंगे, व्हाट इज स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस समझ लेंगे तो कल वाले सेशन में स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है हम वो देखेंगे। इंटरैक्टिव सेशन है, किसी भी वक्त आप मुझसे सवाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोलते जाऊं 15 मिनट आधा घंटा और फिर आप सवाल करो। बेसिकली इंटरैक्टिव सेशन में मेरा ऐसे हमेशा होता है कि आई पुट अ क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू रिप्लाई ऑन दैट टॉपिक। जैसे हम वेरियस कंडीशन स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो आई वांट यू ऑल शुड इंटरैक्ट कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप बताओ कि आपको उस वक्त स्ट्रेस होता है कि नहीं। सबसे एक कहते हैं ना कि शॉर्ट टाइम जब तो स्ट्रेस आना ही आना है, वो कौन सा टाइम होता है स्टूडेंट लाइफ में? एग्जाम टाइम, करेक्ट। सो एग्जाम टाइम इज अ टाइम जब हमें स्ट्रेस आता ही आता है। क्यों आता है स्ट्रेस, डील कैसे करना है हम बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रेस क्यों आता है एग्जाम टाइम में ये हम सोचेंगे। क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या बताया, जब भी हमें अपने आप को चेंज करना होता है, हमें अपने लाइफ में चेंजेस लाने होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, करेक्ट। तो एग्जाम टाइम में ऐसे कौन सी चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है कि जिससे हमें स्ट्रेस हो, कौन बताएगा? अदिति एंड अथर्व, जस्ट नाउ तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, इवन आयुष। व्हाट चेंजेस, बेसिक चेंजेस आपको क्या करने पड़ते हैं? स्टडी शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ते हैं बहुत सारे। तो ये तो चलो 10 तक के बच्चे हैं, 12 तक के बच्चे अगर हैं तो उनको मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक स्कूल होता ही होता है, फिर क्लासेस होते हैं, होमवर्क होता है। बट जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, भाविका है, दिया है, इवन विनय इज अ स्टूडेंट, राइट? यस। सो कॉलेज में क्या होता है कि देयर इज नो फिक्स टाइम, अटेंडेंस भी कंपलसरी नहीं होता है। सो जो शेड्यूल होता है कि एवरीडे स्टडी, वो ब्रेक हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा शेड्यूल फिक्स होता है, मॉर्निंग हम स्कूल जाएंगे, 2 o'clock 3 o'clock तक स्कूल से आएंगे, थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद हम पढ़ाई करो, मम्मी पापा पढ़ाई करने बिठाएंगे ही, कंपलसरी स्टडी टाइम होता है, होमवर्क टाइम होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं देन वी से व्हाट, हम पेरेंट्स को बोलते हैं डोंट टेल मी। ये तो हमारी कॉमन लाइन होती है ना, हमें पता है क्या करना है। फिर हम क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं एंड बेसिकली हम लाइफ एट ईज जीते हैं, लेस रिस्ट्रिक्शंस, लेस कंपल्शंस, अपने मर्जी से जीते हैं। तो अपने मर्जी से जीने में अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, सी ऐसा नहीं है कि एवरीबडी विल हैव स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम, सिलेक्टेड फ्यू विल हैव। सो कुछ लोग जो अगर ये पढ़ाई वाला शेड्यूल फॉलो नहीं करते, तो हम लोग कॉलेज से आएंगे, फोन है, टीवी है, फ्रेंड्स हैं, हमारे शेड्यूल में पढ़ाई का टाइम कितना होता है एवरी डे कॉलेज में से आने के बाद? अनुराग, हाउ मच टाइम यू स्टडी? 1 hour. 1 hour. सो मैक्सिमम हम 1 hour 2 hours, अगर मूवी नाइट हो गया या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चले गए तो वो भी गया 1 hour। कभी रिलेटिव्स आ गए, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं, सो वी डोंट फॉलो अ रूटीन। बट जैसे ही एग्जाम डेट्स डिक्लेयर हो गए, 1 month पहले एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई, नाउ वी हैव अ फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस हमारे सामने है एंड पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ हमारा जो डेली रूटीन है उसको चेंज करना है। सो वन फैक्टर न्यू इज चेंज आवर डेली रूटीन, एंड चेंजिंग इन आवर डेली रूटीन कॉजेज स्ट्रेस। क्योंकि हमें सब कुछ छोड़ना है। कॉलेज से आने के बाद जो हमारे पास 5 to 6 hours थे, उन 5 to 6 hours में हम जो जो काम करते थे वो सारी चीजें हमें अभी नहीं करनी है। अपने आप को फोर्स करना है पढ़ने के लिए। नाउ यू फील स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट चेंज। चेंज ना लाए तो क्या होगा? देयर इज अ फियर,
व्हाट फियर? रिजल्ट। रिजल्ट के बाद लोग क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, सो दैट फियर इज देयर. सो 2 फैक्टर्स. एग्जाम टाइम अगर हम रिलेट करें तो कौन से 2 फैक्टर्स है? वी नीड टू चेंज आवर शेड्यूल कंप्लीटली. चेंज करें चेंज ना करें, फियर फैक्टर इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद एग्जाम ड्यू टू रिजल्ट्स. सो एग्जाम टाइम का स्ट्रेस क्लियर है आपको? और कुछ स्ट्रेस होता है एग्जाम टाइम में? Do you experience any other type of stress? जो पढ़ के गए वो नहीं आया तो वही तो मैंने कहा कि फियर ऑफ गेटिंग द रिजल्ट, कि क्या पढ़ें. एक्चुअली होना क्या चाहिए कि हम सब पढ़ें, पर हमने शेड्यूल मेंटेन नहीं किया है. अब शेड्यूल मेंटेन नहीं किया तो मेरे पास 1 month एंड एंटायर सिलेबस, सो वी सिलेक्ट कि ये छोड़ूं ये पढ़ूं, ये छोड़ूं ये पढ़ूं. हाँ या ना? अभी अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, अब मेडिकल में तो पूरा बॉडी सिखाते हैं, तो हम क्या छोड़े और क्या पढ़े एग्जाम के लिए? पेशेंट आए तो क्या बोले, किडनी. किडनी हमने ऑप्शन में रखी थी, हमने नहीं पढ़ी थी, ऐसे कहें. आईज, नेक हमने ऑप्शन में रखा था, बोन्स हमने नहीं पढ़ा था, टाइम नहीं था. इज द ऑप्शन अवेलेबल? नहीं हो सकता. करेक्ट. सो जो पढ़ के गए वो ना आए, ये टेंशन क्यों होगा? जब हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे नहीं. और पूरा सिलेबस क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि हमने अपने डेली रूटीन में स्टडी टाइम रखा ही नहीं है. अगर डेली रूटीन में हम 2 hours टाइम रखें, 3 hours टाइम, जो आज कराए वो पढ़ ले, वो टेस्ट कर ले, रोजाना रिवाइज भी कर ले, तो ये स्ट्रेस एलिमिनेट हो जाएगा. क्लियर? सेकेंड, ये तो एग्जाम टाइम है. और कुछ है एग्जाम टाइम से रिलेटेड स्ट्रेस? चेंज एंड फियर. फियर ऑफ द रिजल्ट, फियर ऑफ नॉट परफॉर्मिंग. ये 2 चीजें. और कुछ है? कंपैरिजन. ओके, कंपैरिजन ऑल्सो. वो कितने घंटे पढ़ रही, वो कितने घंटे पढ़ रहे, होता है ना? यस. सो दूसरे कितनी देर पढ़ रहे हैं, हम कितनी देर पढ़ रहे हैं. सो ऑलवेज दिस फैक्टर इज देयर विथ यू. comparison, not ready to change, and the fear. These 3 things are always associated with stress. सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें, सेकेंड कंडीशन है कि आपके कोई कजन्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बड़ा भाई बड़ी बहन है जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं. है आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन? जब भी हम पढ़ने बैठते हैं या जब भी हमारा एग्जाम टाइम होता है तो हमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है? देख तेरे कजन को इतने मार्क्स मिले, वो ये कर रहा है, वो यहाँ जॉब कर रहा है, फॉरेन चला गया, इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल कर रही, और तुम क्या कर रहे हो? इज दिस कंपैरिजन इन योर लाइफ ऑलवेज एग्जिस्टिंग है? यस और नो? जी गुरुमा. सो हाउ यू डील विद इट? या अगर हम डीलिंग की बात फिलहाल स्किप करें कि कंपैरिजन होता है, किन चीजों को लेके कंपैरिजन होता है? किसी ने साइंस कोर्स लिया है उसके रिलेटेड कि उसका कोर्स ज्यादा अच्छा था, आपका इतना ठीक ठाक है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी या नहीं. सो ऑलवेज वी वांट बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड. अगर हमारा छोटा भाई है तो हमें उसके लिए टॉप नॉच चाहिए. टॉप नॉच मतलब अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल कर रहे हो तो ही आपको शायद कोई कंपैरिजन ना किया जाए, उसमें भी स्ट्रेस होता है. जैसे हमारे पास तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है अनुराग, उसको भी स्ट्रेस है. क्या क्या स्ट्रेस है तुमको? जैसे जो कॉमर्स कर रहे हैं उनको कहा जाता है साइंस नहीं कर रहे, जो साइंस नहीं कर रहे उनको कहा जाता है कि अरे देखो वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो मेडिकल कर रहा है. तो वो स्ट्रेस उनके लाइफ में हमेशा बना रहता है. अब तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो पढ़ते वक्त तुम्हारे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है? क्या स्ट्रेस है? क्योंकि बाकी लोगों के हिसाब से, बाकी पेरेंट्स के हिसाब से जो इंजीनियरिंग करता है वही बेस्ट है. हेक्टिक
लाइफ रहता है बाद में, अगर अभी एक बार कोर्स कंप्लीट हुआ तो आगे जॉब मिलेगा या नहीं, किधर मिलेगा, बाद में यस, एक ही जगह ठिकाने पे रहना चाहिए। हाँ। तो अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको ये स्ट्रेस होता है कि वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है उसका बेटा, तो उसके लिए कंटिन्यूसली बोला जाता है। पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का भी क्या स्ट्रेस खत्म हो जाता है? नहीं खत्म होता। उनको ये स्ट्रेस होता है कि अब जॉब अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए। सो स्ट्रेस इज नेवर एंडिंग। और ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, कभी कभी दूसरे करते हैं, कभी कभी हम खुद भी करते हैं। लाइक वी हैव MBA स्टूडेंट ऑल्सो, धड़कन है ना? हेलो, यस यस। हाँ, तो हमें लगता है कि एक्चुअली MBA कर लिया तो लाइफ सेट, अभी कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बट डू यू स्टिल हैव सम स्ट्रेस? Yes, ma'am. We have a different kind of stress. Like अगर समझो मैंने investment, because MBA is just kind of an investment. तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें से मेरे को ROI कितना मिलेगा? बेसिकली जॉब अगर मैंने 5 लाख आज इन्वेस्ट किया अपने स्टडीज में, प्लस अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ये सब इंक्लूड करके 7 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे 10-15 लाख अर्निंग चाहिए ही चाहिए ईयरली बेसिस पे। तो दैट्स अ स्ट्रेस फॉर मी। हाँ, तो हम MBA करें या इंजीनियरिंग करें, जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना रिटर्न हम कितने जल्दी से जल्दी हमको मिले, वो भी एक टेंशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वालों को स्ट्रेस है कि कंपैरिजन में उनके कजन्स या उनके नेबर्स या उनके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो साइंस कर रहे हैं वो उनकी लाइफ अच्छी है, उनको सुनना नहीं पड़ेगा। हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस है ही। और यहाँ पे स्ट्रेस क्या है? कंपैरिजन फैक्टर से आपको कंटिन्यूसली कंपेयर किया जा रहा है किसी एक ऐसे इंसान से जिसने कुछ और फील्ड ली है। अब अगर हम देखें तो हमें लाइफ में हर फील्ड, हर ऑक्यूपेशन की जरूरत होती है या नहीं? हमें कॉमर्स वाले लोग चाहिए, हमें साइंस वाले लोग चाहिए, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक हम बीमार होते हैं तो पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी लोग चाहिए हमें। सो वी नीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इन आवर लाइफ। पर जब हमारा कैरियर बिल्डिंग का टाइम होता है तब हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू या तो पेरेंट्स या तो नेबर्स कंपेयर करके स्ट्रेस देते हैं। कभी कभी वो ना भी दें तो उनको देख देख के, उनकी सक्सेस देख देख के हमें भी स्ट्रेस आता है। ये भी फील करते हैं आप लोग? अनुराग, कभी होता है ऐसे? अथर्व, दिया, दूसरों का सक्सेस देख के हमें लगता है अरे हम कब ऐसे सक्सेस, हमें कब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? हाँ लगता है। या ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, सो ये ये स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस किस वजह से है? ये स्ट्रेस है कंपैरिजन की वजह से। उनके कंपैरिजन में हम कम पढ़ते हैं, हमें लगता है हम कम पढ़ते हैं। एक्चुअली किसी भी फील्ड में हम बहुत अच्छा सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं अगर हम कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में, अगर हम उतना 100% पढ़ते वक्त अगर 100% दे। जैसे मैंने कहा, जैसे फर्स्ट एग्जाम शेड्यूल है, अगर हम हमारे लाइफ में शेड्यूल बनाते जाते हैं हमें स्ट्रेस ही नहीं होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रेस होता है वो होता है फिजिकल अपीयरेंस का स्ट्रेस। आप सबको होता है, ये तो एज ही है। आइदर वी आर टू फैट और वी आर टू थिन, होता है ये, और वी आर टू टॉल, टू शॉर्ट। या तो हमें लगता है बहुत मोटे हैं, या तो पतले हैं, या तो हम बहुत लंबे, या तो बहुत छोटे हैं। कभी लगता है हमारे बाल सही नहीं है, दूसरों के बाल अच्छे हैं, बहुत पतले बहुत मोटे बाल हैं। हाँ। कभी स्किन टोन हमें पसंद नहीं आता है, हमारा अपीयरेंस, हमें कभी आंखें पसंद नहीं आती हैं, होता है ऐसे। क्या ये स्ट्रेस है आजकल की लाइफ में? आई मीन योर एज में? मुस्कान? सर्टेन इनसिक्योरिटी है, सर्टेन चीजों को यस, लेके। इनसिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं। मेरा जी हाथ मैम। ऐसे। हाँ, धड़कन, यस देयर इज। मतलब हर किसी को लगता है कि दूसरा अच्छा है। अगर दूसरे की हाइट कम है और चेहरा बहुत सुंदर है तो हम बोलते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। फिर वो इंसान बोले मेरी हाइट कम है, अरे हाइट कम होने से क्या हुआ, दिखने में तो अच्छे हो। किसी दूसरे की हाइट अच्छी है, चेहरा खराब है तो हम कहते हैं हाइट कितनी अच्छी है। चेहरा चल जाता है, वो तो तुम स्मार्ट, हाइट है तो सब छुपा लेती है।
तो हम अपने हिसाब से स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं। किसी में हमें हाइट अच्छी लगती है, ऐसा कोई है आपके सामने परफेक्ट कि जिसका सब कुछ अच्छा हो, कैरियर, जॉब, अपीयरेंस, सब कुछ। हम सिलेक्टिव लेते हैं। नो, यस, करेक्ट भाविका। तो कभी कोई परफेक्ट नहीं है, पर हम क्या लेते हैं, इसकी हाइट कितनी अच्छी है, फिर हमें तकलीफ होती है। कंपैरिजन, अगेन यहां पे क्या है, देयर इज अ कंपैरिजन कि उसकी लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ, हम इतने अच्छे नहीं दिखते, हमारा कलर डार्क है, हमारा कलर लाइट है, हमारी आंखें छोटी है, हमारी आंखें बड़ी है, हमारे बाल छोटे हैं, हमारे बाल बड़े, हमारी हाइट कम है, हमारी हाइट ज्यादा है। हर पॉइंट में आपको लोग स्ट्रेस में दिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंपैरिजन। क्या हम इस कंपैरिजन से अपने आप को चेंज कर सकते हैं? अगर हम मोटे पतले हैं तो चलो, जो मोटा है वो सोचेगा कि चलो आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, आई ट्राई टू चेंज माई डाइट। हाइट भी कम ज्यादा होती है तो लोग कहते हैं साइकिल चलाओ, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। एडवाइस किया जाता है जिनकी हाइट कम होती है उनको ये, यस, हाँ। तो जब आप इस फील्ड में होते हो, इस एज में होते हो, एंड यू कॉन्स्टेंटली आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट अबाउट योर अपीयरेंस, तो आपको स्ट्रेस होता ही है, होता है। नमस्कार। सब कुछ अच्छा दिखे, मतलब दूसरों की नजर से हम बेस्ट हैं, पर फिर भी हमें क्या होती है, टेंशन होती है, क्योंकि हम जब किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी हमें अपने आप में जरूर दिखती है। और यही कंपैरिजन, जैसे हम बहुत मोटे हैं तो हम चाहेंगे चेंज करने अपने आप को। कैसे चेंज करेगा मोटा इंसान अपने आप को? एक्सरसाइज करेगा, जिम ज्वाइन करेंगे, डाइट चेंज करेंगे। तो जिम ज्वाइन करोगे, आप डाइट चेंज करोगे, तो उसमें क्या होगा, अगेन यू आर ट्राइंग टू चेंज योरसेल्फ। अब जिसे खाने की आदत है, बाय वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, करेक्ट दिया, सो आप खुद पे वर्क करने की कोशिश करोगे। दैट मीन्स यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर रूटीन। चेंजिंग इन योर रूटीन मीन्स आपको जो खाने की चीजें पसंद है वो आप नहीं खाओगे, आपको आराम करना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, फोन रील्स देखना पसंद है, वो छोड़ के आपको जिम जाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगेन यू आर ट्राइंग टू चेंज योरसेल्फ। दिस चेंज इज डिफिकल्ट, and so your body will react, which is called as stress. Is it clear? और क्या होता है, अगर हम बहुत पतले हैं तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? If we are too thin, too weak, again we need to go for a physical exercise, gym जाओ या walking करो, cycling करो, that we need to do. And apart from that हमें डाइट भी अपना चेंज करना पड़ेगा। अगर हम कम खाते हैं तो अभी हमको ज्यादा खाना पड़ेगा, और वो टेंशन में और स्ट्रेस में आप खा भी नहीं पाओगे। नॉर्मली तो हम खाना खा पाते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रेस है कि नहीं मुझे मोटा होना है, मुझे वेट पुट ऑन करना है, वेट पुट ऑन करना है, सो यू वोंट बी एबल टू ईट, रिलैक्स्ड ईटिंग नहीं होगा। दैट मीन्स अगेन यू फील अ स्ट्रेस इन योर लाइफ। ठीक है, और क्या सिचुएशंस होती हैं स्ट्रेस की? बहुत सीधे हो, हाँ, अच्छे हो। नेचर भी एक स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। अगेन यहाँ पे भी कंपैरिजन आता है। एक ग्रोइंग एज होता है ना कि हम कहते हैं कि ये बहुत गुस्से वाला है, तुम्हें चेंज करना चाहिए अपने आप को। इज इट इजी टू चेंज आवरसेल्फ? जो मैं एक्ट कर रही थी अभी तक, वो हाँ, कर रही है। अभी तक जैसे आप जी रहे थे, आपको अचानक से कहा जाता है, सब लोग कहते हैं तुम कितने गुस्से वाले हो, थोड़ा शांत रहा करो। या हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें कहते हैं कि तुम कितने सीधे साधे हो, थोड़ा चालाक बनने की कोशिश करो। अगर कोई चालाक है तो उसे क्या कहा जाएगा? ऐसे चालाकी नहीं चलेगी, शरीफ रहा करो। This will not work in the real world. So every time the world is expecting change from you. ये सबके साथ होता है,
अदिति होता है? हाँ, What they expect from you? गुस्सा कम करना, गुस्सा कम. चिड़चिड़ का हो. Yes, गुस्सा कम करना, चिड़चिड़ कम करना. There is expectations. Is it easy to change? Hmm? लेजी मत बनो. Lazy मत बनो. Laziness is also expected. Responsible बनो. Responsible बनो. That means everybody every day will have a agenda for you, a suggestion for you. Change. Everybody wants what? Change in yourself. Atharva, change is expected from you. Yes, ma'am. Anurag, what change, Atharva? To be sincere towards studying. Not to be lazy. वो थोड़ा सा है. है ना? Is it easy? No. हाँ, जब भाविका इज सेइंग यस, जब हमें खुद को लगता है तो ही हम चेंज कर पाते हैं. गेटिंग इट? सो वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली एक्सपेक्टिंग चेंज, और चेंज ना करने का फियर, कंपैरिजन की वजह से चेंज करना है. हमें चेंज ना करें तो हमें डर लगता है कि दुनिया में एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी. फिर होता है ना, फैमिली गेट टुगेदर होता है तो कोई एक हमारी कजन होती है जो सबकी फेवरेट होती है. होता है ना? वाई? बिकॉज सबको हेल्प करती है. हाँ, सबको हेल्प करेगी, सबसे अच्छा बात करेगी, सबकी वो फेवरेट होगी. होता है हर फैमिली में कोई फेवरेट बुआ, कोई फेवरेट मासी होती है. क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को चेंज, मैक्सिमम चेंजेस उसने अपने आप को लाया है लाइफ में, फिट होने के लिए, सेट होने के लिए. इज इट क्लियर? सो चेंजेस इन द लाइफ इज मस्ट. और किसी को है क्या क्या नेचर में चेंजेस करना पड़ता है? अनुराग? बैलेंस लाना पड़ता है नेचर में. हाँ? बैलेंस लाना पड़ता है. व्हाट चेंजेस? मैं सबको अभी ऐसे हाँ बोलते जाता हूँ, इधर किसी को भी नो नहीं बोलता हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि कभी कभार नो बोलना सीखो. नो बोलना सीखना चाहिए बोलते हैं वो. सो मैंने कहा ना कि आप सीधा साधा हो तो भी आपको, अब इसको बोलते हैं कि तुम सबको हाँ बोलती है. अदिति अथर्व को बोलते हैं कि तुम गुस्सा कम करो. यस. मुस्कान, तुम्हारे को क्या सजेशन है नेचर्स के बारे में? वहाँ पहले गुस्सा ज्यादा था तो बोलते थे मेडिटेशन करता है ना तो गुस्सा नहीं करने का. हाँ. सो इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए हमें. निशांत, एनी सजेशन फॉर फ्रॉम योर नेचर? लेजी नहीं होना. लेजीनेस. विनय? पीपल एक्सपेक्ट, कुछ एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी, तुमसे लोगों की? Yes, ma'am. There are many expectations like to do well in studies, to have a good career, like that. So it is always related to some comparison. Maybe ma'am, a bit about comparison, maybe a bit about myself. Okay. So bit about yourself also, कि जो फील्ड तुमने चुना है उसमें तुम अच्छा करो, परफेक्ट करो. Correct? Like that it is? Yes, ma'am. Yes. So always change is expected from you. अगर आप चेंज अच्छे से नहीं करते हो, रेडीली नहीं करते हो, खुशी खुशी नहीं करते हो, तो आपको स्ट्रेस होगा ही. जब आप रेडी नहीं हो लेजीनेस छोड़ने के लिए, शेड्यूल पे वर्क करने के लिए, अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, अपना जो सीधा साधा है थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए, अगर आप चेंज नहीं करते हो अपने आप को, इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज योरसेल्फ, सक्सेस या ग्रोथ लाइफ में तभी होगी जब कंटिन्यूस चेंज हम अपने आप में करेंगे. बिकॉज जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस. 10 साल पहले जो थे आज हम बिल्कुल भी नहीं हैं. और इन सब चेंजेस के लिए नेक्स्ट जो स्ट्रेस गिविंग चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट. हमसे टाइम ही मैनेज नहीं होता. हम कब सोए, कब उठे, स्कूल से कब आए, फ्रेंड्स को कब टाइम दे. फ्रेंड्स को टाइम दे तो पढ़ाई रह जाती है. अनुराग फेसेस द सेम थिंग, राइट? असाइनमेंट्स रहते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है, डेली स्टडी होता है, बुक कंप्लीशन होता है. एंड when everything is going on, our friends accuse us. हमारे फ्रेंड्स क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? तुम हमें टाइम नहीं दे रहे हो.
So time management is of very much, you need to learn time management. क्योंकि जब हम टाइम मैनेज बराबर करेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको बोलूं कि आप फोन मत देखो, डोंट बी ऑन सोशल मीडिया. इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है कि आप रील्स ही मत देखो. हो सकता है ये ऐसा? अगर हमारे पेरेंट्स भी ये कहते तो पेरेंट्स भी फोन लेके तो बैठते ही है ना. सो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप सोशल मीडिया या फोन यूज मत करो, बट you need to keep slots for everything. जब आपको अपने आप को परफॉर्मेंस, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, अगर आपको परफॉर्म वेल करना है लाइफ में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट में बेसिक चीज आएगी, आपको चेंज अपने आप में लाना पड़ेगा. यस, एवरीथिंग. जैसे चेंज लाना पड़ेगा, स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, क्योंकि कैसे करें लाइफ में चेंजेस हम. बट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. चेंज तो लाइफ में होना ही चाहिए. वेयर इट इज? कनक करके कोई ज्वाइन. somebody is trying to join. हाँ, काजल मुस्कान दीदी की कजन है, ज्वाइन नहीं हो रहा है उसका. How to join it? उन्होंने लिंक पे क्लिक किया है. But I did not. Everybody is joining automatic. Auto join किया ना सबने? हाँ, उन्होंने किसी को एडमिट नहीं किया, उनका इशू आ रहा है इससे. पासवर्ड मांग रहे हैं. नहीं, मीटिंग रूम तो मैंने रखा ही नहीं है. You all joined like that, na? No password was required, na? No, Guruma. Zoom link का पासवर्ड होता ही नहीं. Zoom link का पासवर्ड नहीं होता. Zoom link, फिर what she's asking? बोलो, क्लिक करो, डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे. बोलो Social media stress. Why do I need to give time for social media? Why do I need to give time? क्योंकि वहाँ पे भी नहीं परफॉर्म किया तो स्ट्रेस होता है. टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा कि यू नीड टू गिव टाइम फॉर एवरीथिंग. वन क्वेश्चन आई एम गेटिंग कि व्हाई डू यू नीड टू गिव टाइम फॉर सोशल मीडिया? है किसी के पास आंसर? Social media should be avoided completely, or we should give a slot for social media? Why? There will be constant performance change. Next task, next stress हमारा social media ही दे रहा है. Time management gives you stress? Yes or no? Because time management requires continuous. Yes, we can't completely avoid. That is life today. Yes, time management अगर हम बोलें तो why it is giving us stress? Because when we were small, बचपन में मम्मी पापा पूरा हमारा, yes, today everything is on social media. Even we are now using that only. अगर Zoom नहीं होता तो it would not been possible to connect with you all so easily. Yes. So time management में stress क्यों होता है? क्योंकि बचपन से लेके मम्मी पापा हमारा टाइम मैनेज करते थे. स्कूल से आ जाओ, 2 घंटे सो जाओ, 2 घंटे सो गए, थोड़ा सा होमवर्क कर लो, थोड़ा सा खेलने चले जाओ, फिर आ जाओ घर, खा लो, टीवी देख लो, फिर पढ़ने बैठो. सो द शेड्यूल वॉज फिक्स्ड. अगर हम आज वैसा ही शेड्यूल फॉलो करते जो हम बचपन में करते थे, तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता ही नहीं. बट व्हाट हैपन्स? वी ग्रो. हम बड़े हो जाते हैं. तो अदिति क्या होता है? व्हाट वी वांट? फ्रीडम. नो इंस्ट्रक्शंस. किसी को चाहिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पेरेंट्स से? नहीं चाहिए. बट फ्रीडम के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि तुम्हें अगर अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो तुम्हें टाइम पे चलना पड़ेगा. Yes, independent life always comes with
responsibility. Now what is that responsibility? ये सारी चीजें चेंज करनी है आपको, है ना. एग्जाम टाइम आएगा, फ्रेंड्स कुछ सक्सेस करेंगे, कजन कहीं ले लेगा इंजीनियरिंग मेडिकल, जॉब मिल जाएगी उसको, कोई कोई सुंदर सुंदर. अभी नेक्स्ट वही है हमारा सोशल मीडिया. व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रेस गिविंग फैक्टर? सोशल मीडिया. हाउ सोशल मीडिया गिव्स यू स्ट्रेस? ये आप लोग मुझे बताओ. एवरीबडी विल टेल मी. I What? feel the need to be present. Okay. Every few days. Need to be present. Need to be seen by. Need to be seen. ये स्ट्रेस होता है. दिया गेट्स अ स्ट्रेस कि नीड टू बी सीन. अगर आप नहीं दिखो अपने अकाउंट पे, वही होगा ना, पिक्स एंड ऑल यू पोस्ट समथिंग यू नीड टू पोस्ट. तो ये चीजें उसको स्ट्रेस देती हैं, क्योंकि अगर उसके पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं है तो शी फील स्ट्रेस्ड. Like if it's not relatable, I feel like people might think she does not know what is going रिलेटेबल पोस्ट होना चाहिए. ट्रेंडिंग जिसको हम on. कहते हैं, Is it ट्रेंडिंग, some राइट? new series, I want to post about that. Some new meme. Okay, new meme, new series, new TV, new movie, something. Yeah. Yes. Anybody else? Diya, भाविका, अथर्व, मुस्कान, विनय. सोशल मीडिया आपको किस तरह का स्ट्रेस देती है? Diya says stress by comparing with someone that he or she is posting, but I am not. Yes. Influencers give me stress because of their lifestyle. They show us that we feel like, array. Yes. Again, there is a comparison. They have a better, easier life. They have a better life and you can't change yourself. So not able to change is giving you stress. Comparison जब भी होगा, you are expected to change. और जब आप चेंज नहीं कर पाओगे, चेंजेस नहीं ला पाओगे लाइफ में, then you feel stress. सोशल मीडिया, जैसे मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल छोटे सा ही एक कंसेप्ट में बताती हूँ. ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम्स वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे कोचिंग क्लासेस, ऑलरेडी वी वर गेटिंग स्टूडेंट्स इन आवर क्लास एवरी डे. एंड उसमें हम ये एड ऑन नहीं करना चाहते थे कि हम कहीं बाहर जाओ और कुछ इन्फेक्शन हो गया तो हमने ही अपने बच्चों को दे दिया. सो वी वर स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग. एट दैट ड्यूरिंग दोज डेज मेरी बेटी के किसी फ्रेंड ने एक पोस्ट डाली थी कि शी वॉज हैविंग आइसक्रीम. आइसक्रीम के साथ हम आप लोग लेते हो ना, कुछ भी खाते तो ऐसे पोस्ट डालते हो. सो माई डॉटर सेड कि दे आर हैविंग सच अ नाइस टाइम एंड यू आर नॉट लेटिंग मी गो एनीवेयर और वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. सो वो आइसक्रीम का पिक देख के आप लोग क्या जज करते हो? किसी फ्रेंड ने अगर ऐसे पोस्ट डाला है कि पिज्जा का या बर्गर का और आइसक्रीम का, तो आप क्या जज करते हो? कितना मजा आ रहा होगा, है ना? कंपैरिजन में आपके पास तो पिज्जा बर्गर वो है ही नहीं. वाई सोशल मीडिया गिव्स यू स्ट्रेस? आपको पता है? नो. अजम्पशन. वो फोटो देख के मेरी डॉटर ने अज्यूम किया कि शी इज हैविंग अ नाइस टाइम. एक्चुअली वो नीचे शॉप पे जाके, यस व्हाट समबडी इज सेइंग, एवरीवन जस्ट ट्राइज टू पोस्ट देयर फेक, यस, फेक साइड. We try to be happy. Yes, we try to be happy. तो वो जो आइसक्रीम था वो नीचे शॉप पे लेके वो बस आइसक्रीम खाई थी, उसने फोटो डाला. सो इट वॉज वेरी बोरिंग शेड्यूल, नीचे जाओ आइसक्रीम लेके ऊपर आओ. बट वो फोटो जब सोशल मीडिया पे आई, सो हर कोई जो देखे वो अपने मन से उसको अज्यूम करे. हम अपनी पिक्चर बना लेते हैं कि मस्त रेडी हो गई होगी, शी मस्ट हैव गॉन टू नाइस प्लेस, नाइस होटल में गई होगी, सारे लोग मजाक कर रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे. ऐसा कुछ भी पोस्ट में बताया नहीं गया था और कुछ लिखा नहीं गया था. दिस इज ऑल गोज इन आवर माइंड. फिर हम भी वैसा परफॉर्म करना चाहते हैं. व्हाट वी वांट टू परफॉर्म इवन ऑन सोशल मीडिया. हु एल्स सफर? एंड यू नीड टू रियलाइज कि जैसे हम भी खुश नहीं होते हैं या हम बोरिंग पार्टी में जाते हैं तो हम बोलते हैं चलो एक अच्छा सा फोटो ले लेते हैं. हम अच्छा सा फोटो लेके डालते हैं.
द पार्टी इज वेरी बोरिंग. पर वो फोटो देख के लोगों को क्या लगता है, Later on, when people ask how did you have fun, bro? इतनी अच्छी पिक आई थी. We also want to show that we are happy and we are cool. Yes. So we want to show we are happy and cool. किसको दिखाना चाहते हैं? Whom we want to show? The people who are not there. There is an article where it is if Instagram stops at 80% of the Indian grandparents. Yes, yes. It's correct. क्योंकि आज हम yes to others rather than us. हम इसी बात से खुश होते हैं कि कोई 4 लोग मेरी फोटो को देख के जेलस फील करेंगे. इंटेंशन होता है लोगों को ये दिखाने का कि आई एम मोर हैप्पी, आई एम हैविंग अ नाइस टाइम, आई एम वेरी कूल. एंड देन जब आप घर में बैठे हो, बोर हो रहे हो और आप किसी का पोस्ट देखते हो, सेम फीलिंग आप, क्योंकि उसने किस मन से डाली आपको नहीं पता, पर आपके मन में जो है आप उसी मन से देखते हो. If I am bored, I feel that is better. Yes. Social media. मुस्कान, social media troubles you? अनुराग? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मेरा बहुत ज्यादा कम हो गया है, लेकिन पहले जैसे अगर कुछ अभी तो हम ज्यादा लोग तो बहुत लगता था कि सेशंस कितने ले like चुके हैं, आएंगे। बहुत सेशंस ले चुके हैं हाउ टू बैलेंस योरसेल्फ. जी मैम. हाँ पहले लाइक का लगता था मैम कि लाइक कितने आएंगे. हाँ, ये भी है. उसने वीडियो पोस्ट की, उसने फोटो डाला, हम भी फोटो डालेंगे. अब यहाँ आपने अपने आप को चेंज किया. क्या चेंज किया कि आपको फोटो नहीं डालनी थी, आप आराम से बैठे थे, बट 4 लोगों ने फोटो डाली है. अभी अपने आप को आप चेंज कर रहे हो और फोटो डाल रहे हो. अब यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई क्या? स्ट्रेस रिलीव हो गया? नहीं. अब स्ट्रेस क्या है? कितने लाइक्स आएंगे, कितने जनों ने लाइक किया, वो आप देखते बैठो. उसको क्या कमेंट किया, मुझे क्या कमेंट किया, मुझे 1 स्टार, उसको 1 हार्ट, ऐसे क्यों किया. ये सारा चीज आपको क्या देगा? टेंशन एंड स्ट्रेस. हम सोशल मीडिया पे क्यों जाते हैं? मम्मी जब बोलती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो हम बोलते हैं हमने बहुत पढ़ लिया, अब हमें रिलैक्स होना है. हम क्या स्टेटमेंट पुट करते हैं फोन लेने के लिए? अथर्वा, तुम लेते हो ना फोन? अदिति? यस मैम. हाँ, क्या बोलते हैं हम पेरेंट्स को? कि अभी बहुत पढ़ लिया, अभी जरा थोड़ा मोबाइल चाहिए. थोड़ा मोबाइल चाहिए रिलैक्स होने के लिए. करेक्ट? यस. तो मोबाइल लेने से हम रिलैक्स हो जाते हैं नहीं, और टाइम वेस्ट हो जाता है. और टाइम वेस्ट होता है और स्ट्रेस बढ़ता है. इसने वो अभी किसने लिखा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो. यस. यस, कि हर कोई सोशल मीडिया पे हमने कुछ डाला ही नहीं पोस्ट आज. सो दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ स्ट्रेस. एक डर है आपके मन में कि लोगों ने ज्यादा पोस्ट डाल दिया, आपने कम डाला. आपने सपोज एक पोस्ट डाली, आपने ट्रेडिशनल अटायर में प्रॉपरली पोस्ट डाली, सबने वेस्टर्न कपड़ों में डाली, तो यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. क्यों? किसी ने फोटो डाल दी कि फॉरेन में जॉब मिल गया है, हैविंग अ नाइस टाइम, स्पेंडिंग वीकेंड, किसी होटल का फोटो डाल दिया, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है. तो हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर, हमें अभी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो देख के ही हम डाउन हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा. I'm so behind. आई एम सो बिहाइंड, मैं इतना पीछे हूं, मैं कब ये जिंदगी जीऊंगा. सो प्रेजेंट में से आप इमीडिएटली फ्यूचर में जब जंप करते हो तो भी आपको स्ट्रेस होता है. इंस्टेड ऑफ इफ यू फोकस ऑन योरसेल्फ, जैसे हम जब स्ट्रेस का डिस्कस कर रहे थे, तो माय डॉटर क्वेश्चन कि अगर हम खुद से ही कंपैरिजन में स्ट्रेसफुल फील करते हैं तो क्या होता है, हाउ टू ओवरकम इट. फॉर एग्जाम्पल, देर इज वन टाइप ऑफ स्ट्रेस कि जहाँ ना मुझे सोशल मीडिया की पड़ी है, ना मेरा फिजिकल अपीयरेंस का प्रॉब्लम है, ना मुझे किसी कजन से प्रॉब्लम है, ना मेरा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है. मेरा प्रॉब्लम खुद से ही है, मेरा कंपैरिजन खुद से ही है. कि बचपन में मैं 80% लेती थी, जब हम 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक हम 80% आराम से ले लेते थे. टुडे आई स्ट्रगल टू इवन गेट 50%. So this is a stress. Again, this stress is why?
Self comparison. So is it good or is it bad? How many of you feel कि सेल्फ कंपैरिजन आप लोग भी फील करते हो कि पहले चीजें आसानी से हो जाती थी, अभी उसी के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है? फर्स्ट 80% वॉज अ नॉर्मल थिंग, नाउ यू नीड टू स्ट्रगल. ऐसा और कोई फील करता Worst है? and worst was 80% first. यस, पेपर बहुत खराब गया तो इट इज 80%. मोस्टली कॉलेज वाले फील करते होंगे गेटिंग 80 बिकम्स डिफिकल्ट. बरोबर. हाँ, व्हाई सो? हैव यू कंपेयर्ड योरसेल्फ? कभी ऐसे स्ट्रेस होता है तुमको सोच के कि पहले तो मैं बहुत इजीली पढ़ लेता था, अभी मुझे तकलीफ होती है पढ़ने में? हाँ बरोबर, होता है एक बार. हाँ. Who else feels this stress? सेल्फ कंपैरिजन में किसको स्ट्रेस होता है? हम एक अपना चार्ट बनाते ना 80 80 90 90, तो अब कहाँ जाएंगे? डाउन जा रहे हैं. या पहले चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी, अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन है सबकी. हम जब छोटे होते हैं तब कंपैरिजन कम होता है. हमारा पूरा शेड्यूल हमारे पेरेंट्स के हाथ में होता है. कब उठना है, कब सोना है, ये सब उनके हाथ में होता है. हम उनके हिसाब से चलते हैं. अब हमने अपने लाइफ में चेंज लाया है. चेंज इज नॉट ऑलवेज फॉर गुड. चेंज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. हमने टाइम मैनेजमेंट ले लिया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था. टाइम मैनेज हम कर नहीं पा रहे हैं. सोशल मीडिया है, फ्रेंड सर्कल है. गेटिंग इट? सो दिस इज ऑल्सो, सोशल मीडिया इज द, मतलब मैक्सिमम अगर स्ट्रेस हमें होता है किसी को, अगर आप चार्ट बनाओ कि कौन सी चीजें आपको लाइफ में प्रॉब्लम दे रही है, तो अनलेस एंड अनटिल आपका लास्ट सेम हो, आपको सोशल मीडिया ही प्रॉब्लम देगा, फ्रेंड्स ही प्रॉब्लम देंगे. जब कॉलेज खत्म होने वाला होगा और जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, वो ही एक टाइम होता है जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कहाँ जॉब मिलेगी. फिर जब हम लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं कि इसने यहाँ जॉब हो गई, इसको यहाँ जॉब मिल गया, ये बैंगलोर गया, ये कनाडा गया, ये पूना गया, then there is a big question mark. Why this question mark? Why this stress? Because हम अपने ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों को देख के टेंशन ले रहे हैं. This also creates stress in you. And last, अगर हम देखें, the family. Sometimes family is the main reason of stress in your life. कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं. समटाइम्स मम्मी पापा की नहीं बनती आपस में, कभी बड़ा भाई जो है वो प्रॉब्लमैटिक होता है, कभी बड़ी बहन को कुछ प्रॉब्लम होता है. दैट मीन्स फैमिली में ही इतना इश्यू होता है कि आपको वो स्ट्रेस फील होता है अपनी लाइफ में. Environment stressful. यस, एनवायरमेंट इटसेल्फ बिकम स्ट्रेसफुल. और जब हम बाहर स्टेप आउट करते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, तो हमको लगता है अरे इनके घर में तो कितना अच्छा माहौल है, हमारे घर में ऐसा क्यों है. How many of you feel कि that is also a factor, that is also a point to be considered when we talk about stress? है ना, कि एटमॉस्फेयर घर का अच्छा होना चाहिए, that is also important. How many of you feel? मुझे फील होता है गुरु. Pleasant, ideal, not very good, but at least not every day इतना troublesome हो मेरे घर में तो. So you all feel this important factor है आपके लाइफ में? फैमिली स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको स्ट्रेस फील होता है. On and off होता है, but maybe not every day if it is a problem. How many of you feel? मैम ये तो सबसे पहला रीजन है एक्चुअली स्ट्रेस का, हाँ, क्योंकि तभी तो होता है जब भी हम इन दी एंड आते हैं तो वी वांट सम पीस, सम हैप्पीनेस इन आवर होम. तो हमको एक पीस चाहिए, हमको एक हैप्पीनेस चाहिए हमारी लाइफ में. तो हम कैसे स्ट्रेस को ओवरकम करें? कैसे फैमिली, कैन वी चेंज आवर फैमिली? नहीं कर सकते हमारी फैमिली चेंज, बट ये स्ट्रेस तो है ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट, या ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो हमारी वजह से है ही नहीं.
बाकी सारे स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमने क्रिएट किए हैं, पर क्या ये स्ट्रेस हमने क्रिएट किया है? बट उसका बाय प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। नहीं ना, ये किसी और की प्रॉब्लम है। पर हाँ, हमें स्ट्रेस हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। हाउ मेनी ऑफ यू फील स्ट्रेस ड्यू टू फैमिली? व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू फील ड्यू टू फैमिली? क्या फील करते हैं आप? मुस्कान, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू फील ड्यू टू फैमिली? मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई समझता नहीं है। कोई समझता नहीं, ओके। धड़कन? मैम ये भी एक है कि समझता नहीं है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं उतना एफिशिएंट उनको दे पा रही हूँ जितना वो करते हैं। जब से मेडिटेशन मैंने ज्वाइन किया, पहले तो ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी फैमिली नहीं समझती है, पर जब से मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया है, अभी कंडीशन से तब देखने के बाद, तो ऐसे लगता है कि मैं उतनी एफिशिएंट ही नहीं हूँ मेरे घर वालों के साथ। मतलब मैं उनको नहीं दे पा रही जितना मुझे उनको देना चाहिए, जितना उन्होंने सपोर्ट किया था। पहले तो लगता था वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं क्या, जब से आपने मेरे को समझाया कि सी फ्रॉम अदर साइड एंड मेडिटेशन के थ्रू, तो अभी मुझे लगता है कि मैं ही एफिशिएंट नहीं हूँ उतनी। तो ये फैक्टर तो सबके पास है कि फैमिली अंडरस्टैंड नहीं कर रही है हमको। अनुज, अनुराग, भाभी का यस, फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करी। दिया? You feel this? No, ma'am, not regarding फैमिली इश्यूज नहीं है? My mother and father and brother वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल कूल। अथर्व? अनुराग? मुझे जितना मिला है मैं उतना दे पाऊंगा क्या आगे? हाँ, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, वो भी डर रहता है। जैसे धड़कन का डर है कि वो तो मुझे 10 सब दे रहे हैं, अब मैं कितना दे पाऊं, मैं उतना कर पाऊंगा उनके लिए। I hope I don't disappoint you. हाँ, सो समटाइम वो भी है मैम कि अगर मतलब मुझे कुछ वो बोलते नहीं और सपोर्ट करते हैं इतना, पर आगे जाके जब मुझे जॉब या कुछ मिलेगा तो मैं उनको उतना दे पाऊंगी कि नहीं जितना लाइफ मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना दिया है। हाँ, तो फैमिली, कुछ लोगों को ऐसा है कि फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है बहुत आपसे, और कभी ऐसा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, आप वो एक्सपेक्टेशंस पूरे कर पाओगे कि नहीं। गेटिंग इट? सो फैमिली स्ट्रेस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस हमारे लाइफ में हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस हमारे लाइफ में आ रही हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग इन सिचुएशंस को हैंडल? बिकॉज वी फील समटाइम्स वी डोंट वांट टू चेंज, देन देयर इज अ स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस है, अब जब मैं स्ट्रेस कहती हूं तो कुछ लोगों को लगेगा कि स्ट्रेस, हम में तो इतना स्ट्रेस है नहीं, बट स्ट्रेस जो है ना, अपना इफेक्ट आपके माइंड और बॉडी में देता है। कुछ सिम्टम्स आप अपने माइंड और बॉडी में फील करो कि क्या आपको ऐसा होता है। जैसे अभी किसी ने कहा कि गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। दिस इज हाउ योर माइंड इज रिएक्टिंग। यस, जब आप टेंशन इज व्हाट? इट इज अ मेंटल रिएक्शन टुवर्ड्स द स्ट्रेस। काम करना है, उसका टेंशन कभी भी नहीं होगा। काम कैसे होगा, वो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मैं परफेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं, उस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेस। वर्क इज नेवर अ स्ट्रेस। व्हेन यू थिंक अबाउट वर्क, व्हेन यू थिंक अबाउट आउटपुट, व्हेन यू थिंक अबाउट अदर्स रिएक्शन टुवर्ड्स दैट आउटपुट, that thing is called as stress. Getting it? So tension is a reaction of your mind towards stress. Tension, frustration, irritation, feeling irritated, चिड़चिड़ होना, ये सब आपका मेंटल रिएक्शन है, इमोशनल रिएक्शन। कोई बहुत रोता है,
छोटी छोटी बात पे रोते हैं, थोड़ा भी टेंशन है, होता है ना, कॉलेज में बहुत लड़कियां होती हैं जो थोड़ा भी एग्जाम में जाना हो तो रोते हैं, कुछ होगा तो रोने लगेंगे. सो ऑल दिस इज व्हाट, दिस इज रिएक्शन. स्ट्रेस का वो रिएक्शन है. और डर लगता है. डर लगता है. एग्जाम जाने के पहले डर लगता है. कितने जनों को डर लगता है इंटरव्यू के पहले? एग्जाम, यस, पैनिक अटैक इज द हाइट, इज द लिमिट ऑफ स्ट्रेस. वॉमिटिंग आती है आप लोगों को. योर बॉडी इज ऑल्सो रिएक्टिंग. माइंड तो कर ही रहा है, बॉडी इज ऑल्सो रिएक्टिंग. एंजाइटी अटैक, यस. पैनिक अटैक, शिवरिंग भी होती है. यस, शिवरिंग होती है, वॉमिटिंग होता है, फीवर, ये सब चीजें. यस. बॉडी कोल्ड हो जाती है आपकी, शिवरिंग जैसे निशान ने कहा था, करेक्ट. सो योर बॉडी इज ऑल्सो रिएक्टिंग. डर लगता है आपको. क्यों डर लगता है? स्ट्रेस मतलब क्या? किसी को टेंशन होगा, किसी को हेडेक होगा, किसी को डर लगेगा, किसी को वॉमिटिंग होगी, कोई खाना ही नहीं खा पाएगा. यस, यू फील नर्वस अनुज. यस. सो हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. कोई खाना ही नहीं खा पाएगा तो कोई बहुत खाना खाएगा. लाइक व्हेन आई एम स्ट्रेस, अगर मुझे टेंशन है, ट्रैवलिंग का टेंशन, कोई परफॉर्मेंस का टेंशन, कुछ टेंशन है, तो आई नेवर यूज टू ईट प्रॉपरली. सबसे पहली चीज मेरी क्या होगी स्ट्रेस में? खाना बंद हो जाएगा. और वही ऑपोजिट, वन ऑफ माई फ्रेंड, जब भी उसको टेंशन होगा, शी यूज टू पेट भर के खाना खाई. खाना खाने के बाद उसको वापस भूख लगेगी रात को. टेंशन हो रही है तो क्या करें? खाना खाएं. हैव यू ऑब्जर्व दीज इफेक्ट्स, दीज सिम्टम्स इन यू? बीमार पड़ जाते हैं कुछ लोग, बोलते हैं बुखार आ गया. हाँ, बीमार पड़ एग्जाम जाते के हैं. पहले. हेल्थ इश्यूज. माई डॉटर ऑलवेज एग्जाम के पहले बीमार पड़ेगी. शी विल क्राई, शी विल फॉल सिक. सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेस. गेटिंग इट? Nobody can remove this stress from. ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है. सेल्फ मोटिवेशन, जो कि हम लोग कल देखेंगे कि हाउ टू रिमूव, हाउ टू हैंडल दी स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ. एक्सटर्नल कोई दवाई, कोई मेडिटेशन नहीं बना है जो आपके स्ट्रेस को रिमूव करे. बिकॉज इट इज समथिंग व्हाट यू आर प्रोसेसिंग, व्हाट यू आर फीलिंग. नोबडी कैन टेक द फीलिंग. गुस्सा कैसे दूर करें? डॉक्टर दवाई देगा कि शांत सो जाओ, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, बस वही कर सकता है वो. पर सिचुएशन, आप उठोगे, चलो शांत सो गए, फ्रेश सो गए, पर जब आओगे तो सिचुएशन वापस वैसी की वैसी ही है. आपकी फैमिली वैसी है, आपका एग्जाम वैसा ही है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे ही है, आपके एक्सपेक्टेशंस लाइफ से वैसा ही है सब. तो डर, इनसिक्योर फील करना, इनसिक्योर फील करना इज, पता नहीं मेरा क्या होगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या होगा, मुझे मैं सिलेक्ट होता हूं क्या इंटरव्यू में. सो ऑलवेज देयर इज अ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी. ये भी स्ट्रेस का ही रिएक्शन है आपके बॉडी और माइंड पे. कैन यू नेम फ्यू मोर? और कुछ है आपके पास एग्जाम्पल? क्या फील करते हो आप टेंशन में? टेंशन, आपको लगता है टेंशन इज स्ट्रेस. स्ट्रेस का एक टाइप है टेंशन. अगर कोई खाना नहीं खा रहा है, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं, पर वो बहुत खाना खा रहा है, वो भी स्ट्रेस है. अगर किसी को डर लग रहा है, टेंशन नहीं हो रही, वो भी स्ट्रेस है. गेटिंग इट? गुस्सा होना, इरिटेशन. व्हाट एल्स यू फील? नींद नहीं आती कभी. नींद नहीं आती. पेरेंट्स, खास करके आपकी एग्जाम होती है, पेरेंट्स जागते हैं रात भर. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको देखना हो तो जैसे ही बच्चा 10th 11th 12th में होगा या जॉब लगने वाला होगा, ऑल द पेरेंट्स लास्ट मिनट में कोई चीज करते हैं तो टेंशन होती है कि एग्जाम में, हाँ, लास्ट मिनट प्रिपरेशन जब होती है एग्जाम में तो हमें डर लगता है. हम तो टीचिंग फील्ड में ही हैं, तो वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जब बच्चा 10th में जाता है, 10th से लेके जॉब लगने तक, मम्मी, मोस्टली मदर्स, बिकॉज वही घर में बच्चे के साथ ज्यादा रहते हैं, दे सफर हेल्थ इश्यूज. बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज भी मदर्स को होते हैं, फादर्स को होते हैं, 10th से लेके फाइनल ईयर तक. इनफैक्ट माई
अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरी मम्मी को भी इतना हेल्थ इश्यूज ऐसे नहीं था, लेकिन बैक पेन, डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहता कि टेंशन और स्ट्रेस से आपको बैक में पेन, मसल पेन जो बोलते हैं हम, दैट इज मसल पेन इज द, जैसे बॉडी पेन या मसल पेन, ये भी टेंशन या स्ट्रेस की वजह से ही होता है। तो मेरी मम्मी को हमेशा बैक पेन होता था, बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत मतलब वो एक्सरसाइज वगैरह सब, फिजियोथेरेपी वगैरह सब किया, बट बैक पेन वाज ऑलवेज देयर। जैसे ही मैं और मेरा भाई दोनों जॉब पे लगे, दोनों का एक ही साल 96 में ही एजुकेशन खत्म हुआ, 96 में ही हम दोनों ने जॉब स्टार्ट की। जैसे ही जॉब स्टार्ट की विद इन फ्यू मंथ्स मम्मी का बैक पेन खत्म, और आज तक भी मम्मी को बैक पेन कभी हुआ नहीं। वो जो क्रॉनिक बैक पेन था 4-5 years जो था, हाँ, इट वॉज ऑलवेज देयर, कुछ भी करो इट डिसअपियर्ड। सो दैट वॉज व्हाट, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी कि क्या होगा। सो आप लोगों को भी अगर क्रॉनिक बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, तो दैट इज अ साइड इफेक्ट, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी टुवर्ड्स स्ट्रेस। Getting it? What is stress? Is it clear? Different type of effects it has on your body. You want to ask any questions regarding stress? और किसी के पास कोई एग्जाम्पल है स्ट्रेस का? ओवरथिंकिंग, इवन नेगेटिव ओवरथिंकिंग कि ऐसे मैंने कुछ किया ही नहीं तो, मुझे आया ही नहीं तो। हाँ, ऐसे ओवरथिंक, अभी जैसे उसने किसी ने कहा था ना कि जो हमने पढ़ा वो आया ही नहीं तो, है ना। लो कॉन्फिडेंस भी एक नंबर। हाँ, लो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस तो बहुत, मैंने कहा ना, लो कॉन्फिडेंस ऐसा है कि अगर 4 लोग आपके सामने इंग्लिश में बात करें तो आप टेंशन में आ जाते हो कि मुझे तो आता ही नहीं इंग्लिश बात करने, अब दैट मीन्स आई एम नथिंग। आप खुद को ही डीमोटिवेट करते जाते हो बिकॉज ऑफ वन लैंग्वेज। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, आपको हमेशा ये याद रखना है। इनफैक्ट जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना, वो इसको एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट करते हैं। वो कभी भी दूसरों को ऐसा सोचते ही नहीं कि अरे इसको इंग्लिश नहीं आती। जब हमें इंग्लिश कम आती ना, तब हमें प्रॉब्लम होती है कि अरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। सो नोबडी, एक सेंटेंस हमेशा याद रखना, नोबडी कैन पुट यू डाउन विदाउट योर कंसर्ट। आपके मर्जी के बिना आपको कोई नीचा दिखा ही नहीं सकता, आपको पुट डाउन कर ही नहीं सकता। आप जब चाहोगे, आपको जब लगेगा कि अरे मेरे में ये कमी है, तो ही आप डाउन जाते हो। ओवरथिंकिंग कैसे रोकते हैं? किस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं? ओवरथिंकिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रेस। ओवरथिंकिंग जो है ना, बेसिकली हम प्रेजेंट में ना रह के फ्यूचर में जा रहे हैं, हम एक लूप में अटक जाते हैं। ओवरथिंकिंग मीन्स व्हाट? इट इज अ लूप। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। यस, एंड लूप इज ऑल्सो डाउनवर्ड। हाँ बोलो। ओवरथिंकिंग मतलब कि ऐसे होता है कि अगर कुछ भी अच्छा हुआ फिर भी ओवरथिंकिंग होता है, अगर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ फिर भी ओवरथिंकिंग होता है। अच्छा हुआ मतलब कि अच्छे मार्क्स है पर फिर ऐसे लगता है कि अभी नेक्स्ट सेम में और अच्छा करना है, और अच्छा नहीं हुआ तो अगर इससे कम हो गया तो उसमें भी ओवरथिंकिंग होती है। हाँ, जैसे यहाँ पेन हो रहा है, ओवरथिंकिंग ये होगी कि मैं बैठे बैठे खुद ही सोच रही हूँ कि यहाँ पेन हो रहा है ना, मतलब ये हो गया होगा, मतलब फिर मैं गूगल पे चेक करूंगी इधर पेन में क्या होता है, फिर गूगल 4 चीजें बताएंगे, फिर हमको लगता है अरे मतलब मुझे ये तो पक्का ही बीमारी हो गई है, फिर ये बीमारी हो गई तो फिर मुझे क्या दवाई लेनी पड़ेगी, फिर क्या दवाई लूंगी तो मुझे और क्या हो जाएगा, फिर उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो गए। दिस इज ओवरथिंकिंग which is most of the time which is senseless. Maybe this pain will go in 2 minutes, but what I am doing, I am stuck in a loop. Overthinking, tension, stress, irritation, गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी, जो भी मेंटल इश्यूज होते हैं, उन सब के लिए सच में भी मेडिकल साइंस के पास कोई मेडिसिन नहीं है। तब आपको कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करो।
जो कि हम लोग सिखाते हैं। हम मेडिटेशन में क्या सिखाते हैं? एक्सेप्टेंस। सपोज मुझे साइंस पसंद ही नहीं है, मुझे कॉमर्स पसंद है, तो क्या अगर मेरे सारे कजन्स ने साइंस ले लिया, सारे कजन्स मेरे डॉक्टर और इंजीनियर बन गए, पर मुझे साइंस पसंद नहीं, तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई? मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती? नहीं। कॉमर्स लेके भी हम टॉप कर सकते हैं, कॉमर्स लेके भी हम कुछ अच्छा बन सकते हैं। चलो कॉमर्स लिया मैंने, अकाउंटेंट नहीं बनी, मैंने कुछ एमबीए नहीं किया, बड़ा कुछ बिजनेस अंपायर नहीं खड़ा किया मैंने, एक नॉर्मल शॉप भी है, एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर भी कितना अच्छा, मतलब ऐसे यू हैव कम अक्रॉस ना, हम देखते ना हमारे एरिया में कोई शॉप वाला होता है जो इतने अच्छे से आपको ट्रीट करता है, यू फील लाइक गोइंग अगेन एंड अगेन टू दैट शॉप। एक वहाँ नहीं हो तो भी मैं बोलती हूँ, मैं कल आऊंगी पर मैं यहीं हाँ, रहूंगी। जैसे उल्लासनगर में एक शॉप है मार्वल, आपके ही एरिया में है, 1 नंबर में है ना शायद। सो माई डॉटर लाइक्स दैट शॉप सो मच कि जब भी हम बॉम्बे जाएंगे हम मार्वल वाले अंकल के पास जरूर जाएंगे। Why? Because the kind of treatment they give you. So आप किसी भी फील्ड में रहो, यू कैन बी बेस्ट। हम रील्स देखते हैं ना, सोशल मीडिया देखते हैं, हम सब सोशल मीडिया पे हैं। हम देखते हैं ना, किसी इडली वाले का भी कितना वायरल हो जाता है, इतना फेमस हो जाता है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं उससे इडली लेने। बड़ा पाव वाली भी कोई फाइनल इतनी फेमस हो जाती है। लाइक उस एरिया में जाते हैं लोग तो उधर से जरूर खाना हाँ, है। हम बोलते हैं ना उस एरिया में जाओ तो यहाँ से जरूर खाओ। आपके एरिया में ना उल्लासनगर में किशोर पेटिस वाला है, डोली समोसे वाला है, A1 पानीपुरी। हाँ A1 पानीपुरी वाला है। We have or no? That shows what? These are the live examples around you. You need not to be wearing a coat and a tie and a sitting in an AC office and posting pics that makes you successful. जो कल मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आज तो हमने व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस स्टडी किया, कल जब स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाऊंगी तो उस वक्त मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो आर गुड फॉर यू। गेटिंग इट? सो स्ट्रेस इज अ, हम ऐसे कह सकते हैं कि थिंकिंग रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हम सोच सोच के, थिंक कर करके किसी भी चीज को इनवाइट करते हैं। डू यू एग्री विथ इट? अगर सोच अगर सोच से मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है तो सोच से ही जाएगी या नहीं सोचने से जाएगी। गेटिंग इट? सपोज मुझे किसी चीज की एलर्जी है, मेरी एक फ्रेंड को मैंगोज की एलर्जी, मैंगो खाने से उसको तकलीफ होती है, तो मैंगोज की एलर्जी कैसे ओवरकम करोगे? मैंगोज नहीं खा के, है ना? कोई लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है, लैक्टोस इंटॉलरेंट मतलब मिल्क की एलर्जी होती है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की एलर्जी होती है उनको, उसको कैसे हैंडल करोगे? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हम कंज्यूम नहीं करेंगे। गेटिंग इट? तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम है, जैसे आज हमने रीजंस देखे स्ट्रेस के, हर रीजन कंपैरिजन से ही स्टार्ट होता है। जब हम सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस मीन्स व्हाट? हु विल डिफाइन सक्सेस? Being happy with what? Being happy with No, I don't want spiritual answer. I want from them. You have been too long with me. Correctly define success. Bhavika, who can define success? सोसाइटी में तो बोलते हैं कि घर अपना है, अच्छा पैसा है तो यू आर सक्सेसफुल। Okay, अच्छा घर, अच्छा पैसा। दिया? people respect you. हम सक्सेस मतलब कि हमको जो चाहिए था हमारे फ्यूचर के लिए, हमको जो बनना था, हम जो अचीव कर पाए, तो इट्स सक्सेस फॉर अस। जैसे कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है? क्या अचीव कर पाना चाहते हो? कि मेरा ये कि फॉरेन स्टडीज करके फॉरेन में सेटल होना है, उधर ही मतलब सब वो बना जाता सक्सेस फॉर मी, एंड फैमिली को भी वहां पर लाना।
Okay. Who else? गुरुमा, मेरे लिए सक्सेस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो हम दूसरों को देख के कंपेयर करते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो वो हमें चाहिए। अगर वो मिल जाए तो वो सक्सेस है। या फिर वो उनकी लाइफ इतनी हैपनिंग है, वैसी हैपनिंग लाइफ, वैसा घर, वैसी गाड़ी, वो मिले, उतना पैसा मिले, तो वो सक्सेस है। इसलिए वो मेरे लिए नेवर एंडिंग प्रोसेस है कि Okay. हम Vinay? कंपेयर Yeah. करना। बोलो निशांत, complete yourself. जी, कंपेयर करना छोड़ते नहीं है हम दूसरों से, तो फिर वो नेवर एंडिंग हो जाता है मेरे लिए। So for you success is comparison. कंपैरिजन में जिसके पास भी तुमसे कोई चीज ज्यादा है, तो यू वांट दैट थिंग, देन ओनली यू आर सक्सेसफुल. यस। विनय, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? उदय? फाइनेंशियली सक्सेसफुल, बीइंग एबल टू डू व्हाट आई वांट. यस. हाँ, यहीं पे Dharkan is saying feeling content and growing at a pace. Yes. Basically, अगर हम कहें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज सक्सेस, तो हम लोग जितने न्यूज़ देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं या बहुत सारे स्पोर्ट्स में हैं या फेमस पर्सन है जिन्हें डिप्रेशन होता है, जो बीमार पड़ते हैं, मेंटल इलनेस जिसको हम कहते हैं, तो ये फिर उन्हें क्यों होता है? इफ मनी इज सक्सेस, then all rich people should be happy. They should not have any problem in life. They have the most mental problems. They have the most mental problem. वही सुसाइड्स करते हैं, वही डिप्रेशन में जाते हैं, वही ओवर थिंकिंग करते हैं. Getting it? So success is not financial gains. जैसे उस दिन हम लोग एक मूवी देख रहे थे और उसमें एक बहुत गरीब लोग दिखाए, से बंगलो दिखा रहे थे और बंगलो के साइड में कुछ गरीब लोग थे, जैसे छोटा सा टपरी होती है, चाय की टपरी, शॉप होती है. इवन दो दैट फैमिली, दोज पीपल वर सो हैप्पी विथ ईच अदर. तो मैंने ऐसी अपनी बेटी को बोला कि हमें लगता है कि पैसे से ही सुख है, पर ये चाय की टपरी चलाने वाला, इनकी फैमिली, दैट फैमिली इज सो involved with each other and they are so happy. So equating money with success is the most, कहते ना, सबसे खराब, अगर अपने लाइफ में अगर ये जज किया है कि मनी इज इक्वल्स टू सक्सेस, तो ये चीज है. आई डोंट हैव प्रॉपर डेफिनेशन, बट आई थिंक बीइंग सेटिस्फाइड. ये तो अभी तुम मेरी बात दे रही हो. नो, दिस इज इनवैलिड. स्पिरिचुअली जो इवॉल्व होते हैं, दे नो लिविंग इन पीस इज सक्सेस. मन की शांति अगर मिल जाए, क्योंकि जैसे निशान ने कहा कि किसी के पास कोई चीज हो और उससे वो नहीं मिलती जब तक, या उससे वो चाहिए, इफ ही इज फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, दैट मीन्स जब तक वो ना मिले तब तक वो सक्सेसफुल नहीं. वो मिल जाए तो सक्सेस. कंपैरिजन में वो जाता है. अगर हम ये कंपैरिजन छोड़ दें, so we will understand what is success. Because comparison से सक्सेस नहीं मिलेगा, कंपैरिजन से स्ट्रेस ही मिलेगा, जो आज हमने पूरे सेशन में एक्सप्लेन किया है. नेवर गो इनटू कंपैरिजन. टुमारो अगेन विल मीट एंड विल सी कि इस कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन तो पूरे जिंदगी में है ही हमारे. हम कजन्स को गायब नहीं कर सकते छू मंतर छू, है ना. इंजीनियर्स, अगर हम कॉमर्स कर रहे हैं तो हम इंजीनियर डॉक्टर्स को गायब नहीं कर सकते. हम आर्ट्स कर रहे हैं तो साइंस कॉमर्स वालों को गायब कर दो, प्रोफेशन ही हटा दो. नहीं. अगर मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, सिंपल बीकॉम ही किया, तो मैं क्या करूं? हाउ टू हैंडल लाइफ, दैट वी विल सी टुमारो. सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? अगर आपने ये समझ लिया कि सक्सेस क्या है, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने कहा कि आई वॉन्ट टू गो टू फॉरेन. बहुत सालों तक मुझे भी ऐसे लगता था कि फॉरेन वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है, पर पर्सनली मुझे कभी भी फॉरेन जाने में इंटरेस्ट नहीं था.
बट रिसेंटली मेडिटेशन ग्रुप में ही हमारी एक है, शी हैज़ 2 kids. तो उसने मुझे कहा कि इतनी अच्छी ज़िंदगी थी मेरी दिल्ली में, मैं कहाँ फॉरेन आके अटक गई. आई सेड वाई, लाइफ इन फॉरेन इज़ वेरी नाइस. बोला कुछ भी मेड नहीं है, किसी भी काम के लिए हमारे पास मेड नहीं है. झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब हमें, मशीन सबके लिए है, बट यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. कुकिंग है, जो भी है, शॉपिंग है, हैंडलिंग किड्स है. यहाँ इंडिया में हमारे पास हर काम के लिए मेड है. एक रील भी देखी थी परसों मैंने कि देयर इज अ गर्ल हु सेज कि अच्छी खासी पापा की परी थी मैं घर में, और क्या दिमाग में सोचा कि मैं MBBS करने फॉरेन आ गई. नाउ शी इज गोइंग लेट नाइट टू अ शॉप टू बाय अ वाटर बॉटल. पानी पीने का पानी लेने वो बाहर जा रही है और वो ले के सब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रही है. सो इन इंडिया वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज. द ओनली थिंग इज द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया है जो देख के हमें लगता है अरे फॉरेन जाना. प्रेजेंटेशन ऐसा आता है. गेटिंग इट. हमारे ही ग्रुप में है एक डॉक्टर है, शी इज अ डेंटिस्ट, शी इज इन कनाडा. तो शी से अभी हमारे यहाँ डॉक्टर्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं कोई बताएगा? जब हम दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हाउ वी ट्रीट देम? Respectfully. Respect. Doctor is a medical profession, is respectful, na? Now she says when a patient comes to you, उसको बिठा के उसको पूरा प्रोसीजर समझाना पड़ता है कि हम तुम्हारे दांत के साथ क्या करेंगे. उसको कन्विंस करना पड़ता है कि यस आई एम गुड, आई एम बेटर, आप प्लीज मुझसे ये करवा लो. वो कन्विंस होने के बाद वो पेपर पे साइन करेगा और उसके बाद तुम ट्रीटमेंट शुरू करो. ट्रीटमेंट में किसी भी वक्त उसको लगा कि नो यू आर नॉट डूइंग प्रॉपरली या वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो सीधा केस कर देते हैं. ऐसा हमने कभी देखा अपनी लाइफ में? डॉक्टर मतलब हमारे लिए कौन हो गए? भगवान हो गए. So the grass is always greener on the other side. Going to foreign is good, but that is only success. ये stick नहीं करना. ठीक है? आप जाओ फॉरेन, जाओ 2 साल 1 साल जॉब करो, देखो वहां कैसी जिंदगी है. एंड इफ यू फील यू आर हैप्पी देन ओनली प्लान. अभी से अगर आप प्लानिंग पूरी कंप्लीट करोगे ना, फिर अगर चेंज करना पड़े अगेन यू विल गेट स्ट्रेस्ड. ठीक है? So tomorrow is it okay if we start the session at 6:30 to 8 o'clock? Or you want same time 6 o'clock? हाँ या ना? Okay, 6 o'clock is fine. No, you don't want to change the time. Fine. So we'll start tomorrow at 6 to 7:30. कल हम क्या देखेंगे? जैसे सक्सेस तो आज हमने देख ही लिया है. सक्सेस अचीव करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स, वो हम देखेंगे. स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है वो हम देखेंगे. और आज के सेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज आपके पास हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो भी आप पूछ सकते हो. इज इट क्लियर? Yes. Yes. So tomorrow we'll see with all your doubts. Okay? Bye. Bye, Guruma. जय गुरुमा. See you soon. Yes. Yes. Bye. Bye. See you soon, ma'am. Bye. Yeah. Bye, ma'am.